Hello, English learners of all levels. If you are new to the channel, please follow playlist year 2023 and I really welcome you all to my channel. Thank you so much that you devote time to see my videos and I just hope that you have been learning, guys. If not much, at least you have started learning 10%, 20%, and I guarantee you guys, I promise you, the more videos you see of mine, the more connection you will feel with me and the learning will increase, guys. And give it some time. Things do take time. Be patient with yourself and practice is the key. Keep practicing, keep listening to the videos, and do write on the same topic that I have written on in each video. You write about your thoughts, your experiences, guys. I am sharing my experiences. In each topic I'm sharing my opinions, my experiences. For the same topic, I want you to speak about your experiences and your opinions, guys. Okay, so today I have come with a topic like, let me read it for you. And we are on day 117 of year 2023. We have completed so many days. We have to complete day 365. Okay, it is taking some time for me. There are breaks coming up in between, but it's fine. As far as I'm continuously doing it, it's fine. Okay, so the topic now is why we must express, why it is important. सो एक्सप्रेस का मतलब क्या है, गाइस? हम लोग हंसते हैं, रोते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो हम लोग बोलते हैं मुझे समझ नहीं आया। फिर हम लोग बोलते हैं भाई मेरे को ये लैपटॉप लेना है, सामने वाला बोलेगा ये नहीं लेना है। मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ये लैपटॉप लेना है, मैं बोलूँगी मुझे ये नहीं लेना है, गाइस। तो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन कि मुझे ये नहीं लेना है। माई सन टेल्स मी मम्मा मुझे ये चॉकलेट खरीदना है, मैं उसको बोलूँगी नहीं बेटा आपको ये नहीं लेना है, दूसरा चॉकलेट लो। तो वो एक्सप्रेस करते हैं, गाइस। हम बच्चे हमारे सामने रोते हैं, दे समटाइम रेज देयर वॉइस, दे डू आर्ग्यूमेंट्स विद अस, मीन्स दे आर एक्सप्रेसिंग. It's time to understand them. Okay, so and we all express every day. Okay, we all express, but we do have different definition for the expressions as per our experiences. Okay, I just did it with two of my students. One is from health sector. He spoke about his field. One is in military. Okay, he is a soldier. He's in Indian Army. He had different definition for the expression. Okay, so and I have different expression, guys. A different definition for the expression. You will have different definition for the expression. Okay, so let us all share our expressions. Okay, why expressions are important, I mean. Okay, why we must express ourselves. What is the importance of expression? Now, another question here is, when you have expressed in your life and you still remember it, recall the benefits. तो लाइफ में आपने कभी एक्सप्रेस किया है लास्ट टाइम? ओके, आपने कभी एक्सप्रेस किया है और उससे क्या फ़ायदा हुआ है, गाइस? वो आप लिखिएगा अपने पास. ओके, फॉर योर प्रैक्टिस. Okay, now let me start now with the topic. Point number 1, according to me, expressing ourselves in every walk of life is very important. तो मेरे हिसाब से लाइफ में एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है. तो एक्सप्रेस करना मतलब क्या है? किसी ने कुछ बोला, फिर हमने कुछ जवाब दिया. अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई हमें, सामने वाले ने हाँ बोला, तो हम हाँ नहीं बोलेंगे, साथ में ना बोल रही हूँ मैं. तो दैट इज़ एक्सप्रेशन, गाइज. ओके, सो एक्सप्रेसिंग इज इम्पोर्टेंट. Point number 2, I feel when we express we get more clarity about anything. और मुझे ऐसा लगता है जब हम एक्सप्रेस करते हैं, मैं जैसे मेरे स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, वो मुझे बोल रहा है कि मैम मुझे टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं उसको अच्छे से समझाऊंगी क्योंकि उसने एक्सप्रेस किया, उसने बताया मुझे कि मुझे समझ नहीं आया, तो क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है आपको. Point number 3, I feel anybody would understand us better when we express. और जब कोई भी हमें अच्छे से समझता है जब हम एक्सप्रेस करते हैं. आज हम हमारे बच्चों को अच्छे से समझते हैं क्योंकि वो एक्सप्रेस करते हैं. उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो लोग मना करते हैं, वो लोग रोते हैं, तो एक रिलेशन बेटर होता है जब हम एक्सप्रेस करते हैं. Point number 4, I really feel we get better solutions when we express, when we discuss things. और मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ये ओपिनियन है, गाइज, इसलिए मैंने हर जगह बोला है आई फील, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है. आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, गाइज, और होता है. वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, वी डू हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट वन थिंग. ओके, एक चीज़ के लिए हमारे 10 ओपिनियन, सबके एज पर द पर्सन वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस. सो आई रियली फील वी गेट बेटर सोल्यूशंस व्हेन वी एक्सप्रेस, व्हेन वी डिस्कस थिंग्स. पॉइंट नंबर 4. ओके, तो मुझे ऐसा लगता है
है जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ के लिए, हाँ करते हैं, ना करते हैं, तो हमें बेटर सोल्यूशन मिलते हैं। अब मेरा बच्चा जैसे स्कूल में टीचर को बोलता है मुझे समझ नहीं आया टीचर, तो उसे सोल्यूशन मिलेगा, टीचर अलग तरीके से समझाएंगी। या एक मैं एज अ इंग्लिश ट्रेनर, मेरा स्टूडेंट मुझे बोलता है तो मैं लिटरली उसे दूसरे तरीके से समझाती हूँ वही चीज़, तो क्लैरिटी बढ़ती है और चीज़ों का सोल्यूशन निकलता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है गाइस। फैमिलीज में भी ऐसे ही होता है, राइट? देन पॉइंट नंबर 5, आई टीच माई किड्स टू एक्सप्रेस व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन देयर स्कूल। मैं मेरे बच्चों को अभी से सिखा रही हूँ कि एक्सप्रेस करना कितना इंपॉर्टेंट है। स्कूल में अगर उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उनको बोलना जरूरी है स्कूल में कि भाई समझ नहीं आया है, टीचर को बोलो क्लियरली समझ नहीं आया है। Okay, so I teach my kids to express when they don't understand anything in their school, and at home also I do the same thing with them guys. जब भी मैं उन्हें कुछ पढ़ा रही हूँ, कुछ सिखा रही हूँ, मैं उन्हें बोलती हूँ नहीं समझ आए तो पूछो, बोलो, एक्सप्रेस योर सेल्फ। डोंट जबरदस्ती से यस, जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना है गाइस। ओके, दैट इज एक्सप्रेशन। देन पॉइंट नंबर 5, it is done, sorry. Then point number 6, expressing helps in getting better clarity on things. ओके, तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है जब हम एक्सप्रेस करते हैं, सामने वाला हमें अच्छे से समझता है जब हम एक्सप्रेस करते हैं। दो फ्रेंड्स भी अगर बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बात करते जा रहा है, दूसरा कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना हंस रहा है, ना रो रहा है, ना कुछ फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है, तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है गाइस। तो इसके लिए एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी ने जोक मारा तो हम हंसते हैं, किसी ने सैड बात कही तो हम थोड़ा सा सैडनेस दिखाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हमारे चेंज हो जाते हैं थोड़ा सा, तो दैट इज एक्सप्रेसिंग हेल्प्स इन गेटिंग बेटर क्लैरिटी ऑन थिंग्स। रिलेशन इंप्रूव होते हैं व्हेन वी एक्सप्रेस। देन पॉइंट नंबर 7, इन फैमिली व्हेन वी एक्सप्रेस इट अवॉइड्स मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। और फैमिली में ऐसा होता है कि जब अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। अब जैसे मेरा सर दुख रहा है, मैंने बोल दिया भाई फैमिली मेम्बर को मेरा सर दुख रहा है, मुझसे ये काम नहीं होगा, तो सामने वाला मुझे समझेगा कि भाई इसका सर दुख रहा है, इसके लिए इसको ये काम नहीं करना है, तो उससे झगड़े कम होते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी ही नहीं और मैं सो रही हूँ तो सामने वाले को तो ये लगेगा ना मैं मज़े के लिए सो रही हूँ, आई एम मेकिंग यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्क, सामने वाला ये सोचेगा गाइस। तो इसके लिए एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट स्पीक अप। तो सिंपली एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, एक्सप्रेस का मतलब क्या है, बोलना, वी हैव टू स्पीक अप। मुंह खोलना अपने आप में एक एक्सप्रेशन है गाइस। सबसे बड़ा एक्सप्रेस वही है कि अपने को एक्सप्रेस करना है, मुंह खोलना है अपना और बोलना है। कोई चीज़ अगर अच्छी लग रही है तो हाँ, नहीं लग रही है तो नहीं, कुछ और ओपिनियन है आपका किसी चीज़ के लिए तो बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से तो सामने वाला हमें समझता है ना अच्छे से। देन पॉइंट नंबर 8, वी कैन एक्सप्रेस थ्रू बॉडी लैंग्वेज, वर्बली और बाय साइन लैंग्वेज। तो हम लोग बॉडी लैंग्वेज से जैसे हमने शोल्डर को हिला दिया, हाँ कर दिया, ना कर दिया, वर्बली मतलब बोल के बोल दिया, या फिर थम्स अप कर दिया तो साइन लैंग्वेज हो गया, थम्स डाउन है तो यानी चीज़ पसंद नहीं आई है, So these are the 3 ways of expressing ourselves. Then point number 9, I like it when my students express when they don't understand anything. मुझे अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स एक्सप्रेस करते हैं जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। ओके, when they want me to repeat, ओके, when they don't want to discuss on given topic, जब वो मुझे बोलते हैं रिपीट करिए मैम, जब वो मुझे बोलते हैं कि ये टॉपिक हमें पसंद नहीं आया, when they are having their own choice of topic, जब उनका खुद का टॉपिक होता है डिस्कस करने के लिए, I literally like it when they speak up guys, and I mean it guys, I literally like when my students speak up because that shows me that they are into the system. Okay, means they are learning, they are enjoying their learning. Okay, so I get clarity, I understand them, and means they also understand me. Okay, so we understand each other, so that way we don't have communication gap. तो अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है गाइस। तो expressing is very important for every one of us. Then point number 10, expressing turns one more confident, connects better with the person dealing with, and you get more clarity in anything whenever you express. तो एक्सप्रेस करने से क्या होता है, हम कॉन्फिडेंट होते हैं। हमारा अगर बच्चा स्कूल में कुछ पूछता है, टीचर को समझ नहीं है, बच्चे को समझ नहीं आया, टीचर समझा रही है, तो पूछने के बाद बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो टीचर के साथ एक अलग रैपो हो जाती है उसकी। एक एग्जांपल है ये गाइस। ओके, और उसके बाद टीचर अच्छे से समझाएगी, एक क्लैरिटी देती है टीचर, बेटर अंडरस्टैंडिंग कराती है बच्चे को। तो ये एक्सप्रेस करने का बेनिफिट है। नंबर 11, यू एक्सप्रेस ओनली व्हेन यू नो योरसेल्फ बेटर। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है गाइस, हम लोग लाइफ में तभी एक्सप्रेस करते हैं जब हम खुद को अच्छे से जानते हैं।
you express only when your inner system is in sync with your mind. जो अपना अंदर का सिस्टम है, जब वो हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड है ना, हम तभी एक्सप्रेस करते हैं. आज हम बच्चों के साथ इतने डिस्कशन करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन होते हैं. आई एम इनटू द सिस्टम, आई एम इनटू एन अलाइनमेंट. एक अलाइनमेंट होना माइंड का और सिस्टम का बहुत जरूरी है, तभी हम एक्सप्रेस करते हैं. तो अगर सो गाइज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू मी. ओके, व्हाई वी शुड एक्सप्रेस. These are my reasons. You can have your reasons why expressing is important, and you can have different reasons, guys. So make a note of it. You can follow the construction of my sentences, but you write on this topic. It is very interesting, and it is, I mean, you will learn 10 things from this topic. Why, I mean, expressions are very important for every one of us, for every family member. Whoever is in the family is important for all of us. Okay, so speak about it, write about it, and listen to the videos. And thank you so much for giving your valuable time to my video. And I just hope that you are learning. And if you have learned just one thing from this video, please put it in the comment, guys. Okay, and I'll be happy for it. And at the same time, if you have liked the video, please like it. And if you feel you can help someone by sharing this video who needs to learn English, who needs to improve grammatically in grammar or tenses, please share the video with your loved ones. And thank you so much. I'll come back with the next video.